बताओ ना। हाँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। बापू को दे बापू, पापा ने फोन मांगो। हार ना उन्याय वाला सब पहन लो, हार ना उन्याय वाला वो जो जर्सी, ऐसे 10 जर्सी बाजा वाला सब 10 हार ना उन्याय वाला जर्सी। आज 4 জানুয়ারি সোমবার দুপুর 2টো থেকে অরফানগঞ্জ থেকে একটি মেগা রোড শো শুরু হওয়ার কথা ছিল বিজেপির, যেখান থেকে যে মেগা রোড শোতে আজ উপস্থিত থাকার কথা শোভন চ্যাটার্জি, বৈশাখী ব্যানার্জি এবং কৈলাস বিজয়বর্গী। আমরা এই মুহূর্তে আছি অরফানগঞ্জে, ঠিক কাকে সিংয়ের বাড়ির সামনে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু লালবাজারের তরফ থেকে মিছিলের পারমিশন পাওয়া যায়নি, তাই শেষ পর্যন্ত মিছিলটি কি হবে তাই নিয়ে একটা দোলমনো চলছে বিজেপির নেতৃত্বদের মধ্যে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা দেখাবো আপনাদের তারই ফুটেজ, এবং এই মিছিল যাতে না হয় তার জন্য বিশাল র্যাব বাহিনী নামানো হয়েছে। दिन से हम लोग अर्जी पुलिस कमिश्नर से लेके लोकल थाना से लेके किए, लेकिन 1:30 बजे तक आंख मिचोली खेल ममता बनर्जी की पुलिस और यहाँ की कलकत्ता पुलिस ने खेला है, जो घिनौना खेल खेला है। 1:30 बजे हम लोगों को परमिशन दिया गया है, जो हम लोग इसकी निंदा करते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ता को डराया धमकाया गया है, उसके बाद भी हजारों कार्यकर्ता आर नो ममता के खिलाफ में यहाँ पे है। 3 जगह दे रहा है, तीनों जगह में किसी जगह पे आप चलिए, सही रूट है। ওরা হেস্টিং অবধি যেতে বলেছে, আমরা হেস্টিং পার্টি অফিসে অবধি যাব। আমরা এখান থেকে খিদিরপুর ডায়মন্ড হারবার হয়ে না, ওই রুটটা ক্যান্সেল করেছে, আমরা অন্য রুট দিয়ে যাচ্ছি। আমরা এই হেস্টিং পার্টি অফিস অবধি বহুত কন্ডিশন, মানে এরকম বানচাল করতে জন্য খালি কন্ডিশন রেখেছে। সেই কন্ডিশনটাও আমরা মেনে নিয়েছি। কেন? আমরা মোদিজি নেতৃত্বে করি, আমরা মমতা নেতৃত্বে যেটা কাটমানি, ঢিলবাজি, বোতলবাজি, মস্তানি আমরা করি না। না হলে যদি পুলিশ সরিয়ে যদি টিএমসি লড়তে চায় আমরা ওয়েলকাম জানাই, কিন্তু এখানে পুলিশ টিএমসি হয়ে গুন্ডা লাইসেন্স নিয়ে আমাদের সাথে লড়ছে, তো থাকছে না। আমাদের একটা কর্মী সাহস, একটা নেতা সব জায়গায় থাকতে পারে না। যে নেতা থাকবে তার মানে সবাই আছে। এই মুহূর্তে বিজেপির যে র্যালি, সেই র্যালি ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে এগিয়ে চলেছে। আমরা এই মুহূর্তে আছি ডায়মন্ড হারবার রোডের ঠিক খিদিরপুরের কাছে। বিজেপির মেগা রোড শো শুরু হয়েছে এবং এই মুহূর্তে এই মেগা রোড শোটি এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে খিদিরপুরের, একদম খিদিরপুরের চিত্র আমরা তুলে ধরেছি।
দেখাচ্ছি আপনাদের, প্রচুর রফ নামানো হয়েছে, আপনারা দেখুন প্রচুর রফ নামানো হয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা আছি ঠিক খিদিরপুরে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর চারিদিকে প্রচুর রফ নামানো হয়েছে। খিদিরপুরের চিত্র একদিকে তৃণমূল একদিকে বিজেপি। বিজেপি যেখানে মেগা রোড শো হচ্ছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তৃণমূলের একটি মঞ্চ তৈরি করে সেখানে তৃণমূলের কর্মীরা তাদের পতাকা দেখাচ্ছে বিজেপি কর্মীদের। খিদিরপুর থেকে বিজেপির মেগা র্যালি শো এগিয়ে চলেছে বিজেপি হেড অফিসের দিকে। এই মেগা র্যালি শো ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে বিজেপির হেস্টিংস অফিসের দিকে। কিছু সময়ের জন্য বিজেপির এই মেগা র্যালি শো স্থগিত হয়ে গিয়েছিল প্রশাসনের তরফ থেকে, যেহেতু পারমিশন পাওয়া যায়নি, অবশেষে সেই পারমিশন পাওয়ার পর এই মেগা র্যালি শো শুরু হয়েছে। Vote for BJP. বিজেপির মেগা র্যালি শো ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। এই মুহূর্তে আমরা আছি হেস্টিংসে এবং इधर आस्ते जिले के अध्यक्ष ने तय किया था कि आज हम एक रोड शो करेंगे। 5 दिन पहले से प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई कि आप आकर चर्चा करें और रोड शार्ट करें, गाड़ियां नहीं होगी। हमारी रैली समापन हमारे पुराने कार्यालय, क्या नाम है, 6 नंबर मुरलीधरन पर समाप्त होना था, हमारा पुराना भारतीय जनता पार्टी कार्यालय। पर प्रशासन ने अचानक सुबह सारी गाड़ियों को रोक दिया। मोटरसाइकिल हमारी लगभग 1000 थी जो रैली के आगे चलने वाली थी, मोटरसाइकिल को परमिशन नहीं थी। पर अचानक उन्होंने कहा कि आप सब लोग पैदल जाइए और हेस्टिंग तक की परमिशन दी। हमने प्रशासन के आदेश का पालन किया, पर जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, जिस तरीके की नादरशाही चल रही है, वो इसका जीता जागता उदाहरण है कि बंगाल के अंदर प्रतिपक्ष अपनी राजनीतिक गतिविधियां भी नहीं कर सकता है। उसकी परमिशन ममता जी की सरकार में नहीं मिलती। 5 दिन पहले एप्लीकेशन देने के बाद भी उन्होंने परमिशन नहीं दी। 1 घंटे पहले ये बताया कि आप सिर्फ हेस्टिंग तक जाएंगे। मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि चुनाव को अब सिर्फ 4 महीने रह गए। राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करना चाहते हैं, पर पूरे प्रदेश में इसी प्रकार परमिशन को रोकना, एकदम अंत समय में मार्ग हटा देना, गाड़ियां रोक देना, ये मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष को अपनी राजनीतिक गतिविधि रोकने का एक बहुत खराब प्रयास है। मैं ममता जी के इस निर्णय की, इस नीति की आलोचना करता हूं और साथ ही सारे प्रदेश की जनता देख रही, सारे प्रदेश की जनता ने देखा कि जैसा प्रशासन ने
कहा वैसा हमारे कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण रोड शो किया। बीच में टीएमसी के लोगों ने, मुझे बताया गया कि फिराद हकीम के लोग थे वो, मुझे तो पता नहीं, उन लोगों ने पत्थर फेंका, चप्पल फेंकी, पर हमने कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्ण तरीके से, हम किसी प्रकार की राजनीति में हिंसा नहीं चाहते, हम हिंसा के विरोधी हैं, हम एक जवाबदार दल के कार्यकर्ता हैं। हमारी जवाबदारी है कि राजनीतिक गतिविधियां बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो। हम इसका जवाब भी दे सकते हैं, हम हिंसा का जवाब हिंसा से भी दे सकते थे, वो तो मुट्ठी भर लोग थे, हम हजारों की संख्या में लोग थे, पर हमने सबको रोका और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा जुलूस वहाँ से निकला। पर इससे सरकार की, टीएमसी की और ममता जी की नीयत पता लगती है कि वो बीजेपी को बदनाम करने के लिए किसी भी प्रकार से हिंसा हो जाए, अशांति हो जाए, इसका पूरा प्रयास करने की कोशिश की। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि हजारों की संख्या में होने के बाद भी वो उत्तेजित नहीं हुए और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से यह जुलूस निकाला। देखिए, ऐसा है कि ये जो अव्यवस्था हुई उसमें बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे। हमारे बहुत सारे नेता आने वाले थे, भारती घोष जी आने वाली थी, दिलीप दा आने वाले थे, पर पहुंच ही नहीं पाए। और हम प्रशासन ने जिस प्रकार की हमें परमिशन दी उस प्रकार हम परमिशन प्राप्त करके और जल्दी से जुलूस निकाल के ख़त्म करें, क्योंकि हमें सरकार की नीयत पे संदेह था कि कहीं ना कहीं इस जुलूस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए हिंसा करवा सकते हैं। इसलिए हमने शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से कार्यकर्ताओं को निकाल के आज ये रोड शो समाप्त किया। दिलीप दा भी नहीं आए तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। कितनी जल्दी हम शोभन चैटर्जी को अपनी रैली, आपकी रैली में देख पाएंगे? नहीं, वो तो पार्टी के काम में लग गए, लगे हुए हैं, वो बरोबर सब लगे हुए हैं, बिल्कुल सारे कार्यकर्ता पार्टी के काम में लगे हुए हैं। नहीं, वो कोलकाता के ऑब्जर्वर हैं, तो कोलकाता आपके लिए एक अहम, बहुत इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट भी है, तो कोलकाता में आपका फोकस भी है। पिछली बार जब आपके पार्टी प्रेसिडेंट निकल के आए थे, जेपी नड्डा जी खुद ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वहाँ पे प्रोग्राम किए, तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि कोलकाता के जो आपके जो प्रोग्राम्स रहेंगे वो लगभग आपके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो उनका भी तो हमारे लिए पूरा प्रदेश इम्पोर्टेंट है। हमें सरकार बनाना है, पूरे प्रदेश में हर विधानसभा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और सब दूर हम जीतने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार कलकत्ता भी है, कलकत्ता में हमारे लोकसभा के परिणाम अच्छे नहीं थे, इसलिए हमने विशेष ध्यान देंगे और हम इस बार वहाँ पर भी जीत कर बताएंगे। जहाँ जहाँ हम जीते नहीं वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि पिछली बार हम लापरवाही में रह गए कि शायद सेंट्रल फोर्स आ गई तो अब निष्पक्ष चुनाव हो जाएंगे, पर केंद्र सरकार का फोर्स कम था और राज्य सरकार के माध्यम से टीएमसी के लोगों ने पोलिंग बूथ पे कब्जा किया और चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। इसीलिए अब चुनाव निष्पक्ष हो, निडरता से लोग वोट डालें, ये हमने चुनाव आयोग से प्रार्थना भी की। Subscribe our channel. Press the bell icon.